Very good evening to all the dear parents. Thank you for coming and gracing this event. At sharp 6, our chief guest will arrive. So it's a kind request कि जैसे ही वो आएं, please pay a standing ovation to her. She is ACP Manglesh Chundawat and she will be coming right at 6. Second thing, at the time of dispersal, once the function gets over, it's a request to please do not create chaos. ये मैंने ऑलरेडी वॉइस नोट में भी बोला था. फर्स्ट उस गेट से सबसे पहले नर्सरी के पेरेंट्स आएंगे. काइंडली पेव द वे फॉर देम. वी विल इवैक्यूएट द नर्सरी स्टूडेंट्स फर्स्ट, फॉलोड बाय केजी, प्रेप एंड देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ऑल्दो वी हैव सिटिंग कैपेसिटी, बट इन केस अगर जने ज़्यादा आते हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट जो बच्चे सीट्स ऑक्यूपाई करे हुए हैं, आप प्लीज़ उन्हें अपनी गोद में, लैप में बैठा दीजिए. और कल छुट्टी नहीं है, वी विल बी वर्किंग. टाइमिंग सेम रहेंगे, बच्चों के हाफ डे रहेगा. इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप बच्चों के साथ में जो अभी ड्रेसेस हैं, जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो बच्चे जिनकी जो ड्रेसेस हैं, वो प्लीज़ आप कल पॉजिटिवली वापस से बच्चों के साथ में भेज दीजिएगा. दीज आर फ्यू थिंग्स. थैंक यू सो मच. Teachers and my dear friends, I Hedera Singh Shekhawat of grade 3 and I Dhananjay Singh Judo of grade 3 extend our heartfelt greetings and warmly welcome you all to Aditi Silver Bell School on this auspicious occasion of Ganesh Chaturthi celebration. This festival of Ganesh Chaturthi brings the message of happiness, prosperity and wisdom into our lives. We all know that Lord Ganesh is worshipped as the remover of obstacles and the Lord of auspicious beginnings. तो चलिए सबसे पहले एक श्लोक के साथ भगवान गणेश का आह्वान करते हैं. सभी ध्यान दें और श्लोक के साथ भगवान गणेश का स्मरण करें. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक का अर्थ है वक्रतुंड, टेढ़ी सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले भगवान गणेश मेरे सभी कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूरा करे. Oh, thanks for letting me know. Just as Lord Ganesh is revered as the remover of obstacles and the harbinger of good fortune, in our culture we hold our guests in the same high regard with the belief Atiti Devo Bhava. The guest is like God. In the spirit, may I now invite our respected principal ma'am to the stage to introduce our honorable chief guest. A very warm good evening to everyone present here. It takes
immense pleasure to introduce our guest for the evening, Mrs. Manglesh Chundawat. And I am equally impressed and happy. Why? Because she was my super duper senior and we shared the same college, that is Sophia Girls College, Ajmer. She is a living testament that dreams do come true. In her childhood, she was always adorned by the fascinating cars with red lights. And right after her graduation, she cleared RPSC examination, and yes, today she is designated at the post of DYSP, ACP, Central Police, Jodhpur Commissionerate. She has also served as CEO in Pali for 2 years. So I would like to request you all to kindly give her a big round of applause. And I'm so blessed and really grateful by your presence here. Really falling short of words because we had already approached her during Chanakya also, but then because of elections, yes, she was keeping up very busy and she couldn't came that time, but today she is here to bless us all and of course our students. And the cherry on the cake is that she has come in uniform, which we had no idea of, so yes, kids will be really, really happy to see you. Secondly, I would like to pay my gratitude to all the parents. Thank you so much for cooperating with us. In a very short span of just 5 to 10 days, we organized and put forward this function in front of you all, and you were always there with us. Every time जब भी बच्चों को बुलाया, आप लोगों ने cooperate किया और बच्चों को भेजा, जिसका आज proof आपको यहाँ पे stage पे मिलेगा. And this is the first time it has ever happened that class nursery and KG students are coming on stage for the first time in such a short span of time, just September, it's the beginning of September. Though we always try to get them on stage in the month of December. But is bar, my kids are wonderful. The way they are behaving and the way they act while they are on stage, I'm talking about class nursery and KG students, is tremendous. So today you will get to see a glimpse of it. So thank you so much, dear parents, for always cooperating with us. Next, I would like to thank my students, the office bearers who all are roaming here and there, my 4th and 5th graders, and of course, my beautiful team, my teachers, for always being there, such a sport, and putting up this function in such a short span of time. Now, talking about this Ganesh Chaturthi, every year we celebrate Ganesh Chaturthi. 3 functions are there, Ramayan, Janmashtami, and Ganesh Chaturthi. You alternatively keep celebrating this. So this year, this is the mastermind of my teachers. They thought and came up with this thing that this time we should celebrate Ganesh Chaturthi. So yes, we have come up with this program in a very, very small period of time, just 5 to 10 days. And this time there were so many holidays also, but we made sure that their studies do not hamper at the same time. Ganesh Chaturthi, Ganesh Ji, Ganpati. Gan यानी कि अष्टवसु, वसु यानी कि दिशाएं, मतलब कि 8 दिशाओं के पति मतलब स्वामी. तो 8 दिशाओं के स्वामी गणेश जी, उनके बिना कोई भी कार्य अधूरा है ना हम संपन्न कर सकते हैं. तो कहा जाता है कि जब भी कोई पूजा होती है, जब भी हम किसी देवता को आगमन के लिए बुलाते हैं, उस टाइम पे हमें सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी को पूजना पड़ता है या पूजना जाता है. उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो 8 दिशाओं के स्वामी हैं, तो अनलेस ही वुड परमिट देम टू एंटर, दे वुडंट एंटर, which is why we worship Ganesh Ji at the first place, and then we worship the god or goddess whomsoever we are calling for our puja. So number 8 is having a high importance and value. Our school's curriculum is also dependent on the multiple intelligence theory, which is 8 in number, and 8 is the sign of infinity, which again means that here in our school we not only put focus on academics but the overall holistic development of students. And here we make sure कि academics के साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी बच्चे हर तरीके से participate करें ताकि उनको confidence develop करने का एक मौका मिले. Second thing, Ganesh Ji's head is like really big, and it signifies big
thinking and high intellect and wisdom. At the same time, in our school, we are putting focus on academics as well as the heart. The Ganeshi is having very compassionate and kind heart, which is why we are putting major focus on EQ, that is emotional quotient. And we want to raise such children who are very intelligent, if I talk about emotionally. So their emotional intelligence is at peak. They should be, and they would be able to take decisions in their life later on, and the decision making power would be at peak with them. So this is the second thing. Third thing, कि गणेश जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गज का मुख है, लेकिन उनके माता पिता ने उनको वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट किया. Third thing is acceptance. If I talk about acceptance, so yes, even if we see at our body, even our eyes, both the eyes are not same, even our fingers are not same. So why we believe and why we have this notion that both of our kids, if we are having 2 or 3 kids, that they both should stand on the same pedestal? And if not, why do we compare our kids? So here I would like to request as an educator to not compare your kid with any other, but at the same time provide the nurturing environment. As Ganesh is remover of obstacles, we all know. So we as educators and parents can provide them a hassle-free environment wherein they would flourish at their best. This is what I, as a principal and director of the school, would urge you all as parents and of course teachers, that we must provide them the environment to nourish and flourish, and you see your kids where they will go. So this is all from my side. In no time we would begin our function, but before beginning the function, I would like to call my team on stage for a group photograph. Without them, nothing would have been possible. Please give them a big round of applause. Thank you so much, ma'am. Now we request our principal, ma'am, our academic head, and honorable chief guest to light the lamp and officially commence the program. Thank you. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। हमारी संस्कृति में हर शुभ काम की शुरुआत गणेश की वंदना और उनका स्मरण करके ही होती है। तो आज भी हम इस अवसर को और शुभ बनाने के लिए हमारे मित्र गणेश की वंदना करके उनका स्मरण करने वाले हैं। यह वंदना हमें गणेश के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने का अवसर देती है। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें।
सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके मान मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन पात्रे माझ्या कामाला पूर्ती जय देव जय देव. What a beautiful presentation it was by these kids. अरे अरे इतनी जल्दी, अभी तो बस शुरुआत है. Have you ever heard of who कुबेर जी is? अरे हाँ, I know, वह तो धन के देवता है ना. हाँ, पर वो एक समय पर बहुत घमंडी हुआ करते थे. क्या देवताओं को भी घमंड होता है? हाँ बिल्कुल. और गणेश जी ने अपने इंटेलिजेंस से उनका घमंड पल में ही चूर चूर कर दिया. वह कैसे? आओ देखते हैं. प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम. माता पार्वती और बालक गणेश को भी शत शत प्रणाम. प्रणाम राजन. प्रभु, आपके चरणों में एक निमंत्रण लेकर आया हूँ. कैसा निमंत्रण? प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप सब मेरे महल में पधारे और भोजन ग्रहण करें. यह हमें भोजन का निमंत्रण देने के बहाने अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करने आया है. मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु. क्षमा करें महाराज कुबेर, कैलाश पर्वत छोड़कर आना मेरे लिए संभव नहीं है और स्वामी के बिना मेरा आना भी संभव नहीं है. प्रभु, तो क्या स्वयं भगवान के घर से मुझे निराश लौटना पड़ेगा? नहीं महाराज, जब आप इतने प्रेम से हमारे लिए निमंत्रण लेकर आए हैं तो हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है. आप बालक गणेश को अपने साथ ले जाएं. इसे स्वादिष्ट भोजन अत्यधिक प्रिय है. जैसी आपकी आज्ञा प्रभु. आज्ञा पिताश्री. अरे वाह, क्या महल है. लगता है स्वर्ग से भी बढ़कर है. हाँ, क्यों ना हो. आखिर कुबेर का जो महल है. चलिए श्री गणेश, भोजन कक्ष में पधारो. ये तो अद्भुत है. चलो मूषक, सबसे पहले मिठाई से शुरुआत करते हैं. ये तो बस शुरुआत है. कृपया और भी स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लीजिए. बिल्कुल. लाओ लाओ, और भोजन लाओ. लाओ लाओ, लाते जाओ. और लाओ. तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं? ये क्या हो रहा है? प्रभु, पूरा महल तो आपके लिए ही भोजन बना रहा है, फिर भी कम पड़ रहा है. तो और लाते जाओ. अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है. जल्दी करो और भोजन लाओ. जल्दी लाओ. और भोजन लाओ, जल्दी लाओ. प्रभु, अब कहाँ से लाऊं? पूरे महल का भोजन तो आपने ही ग्रहण कर लिया. मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारा अतिथि हूँ. मेरी भूख शांत करना तुम्हारा कर्तव्य है. भोजन लाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा. लगता है कुबेर जी के पसीने छूटने लगे हैं. अब मैं क्या खाऊं? लगता है कुबेर जी ने हमें हल्के में ले लिया. हाँ, अब देखते हैं वह क्या उपाय करते हैं. प्रभु, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो.
मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो प्रभु। अरे अरे, क्या हुआ कुबेर? इतने घबराए हुए क्यों हैं आप? हे प्रभु, आपसे क्या छुपा है? आपके पुत्र गणेश की भूख शांत नहीं हो रही है। वह मुझे खाने की चेतावनी दे रहे हैं। अरे भाई, आप तो धन और ऐश्वर्य के मालिक हैं और आपसे बच्चे की भूख शांत नहीं हो रही है। क्षमा करे प्रभु, मैं अभिमानवश आपको निमंत्रण देने आया था, परंतु प्रभु गणेश ने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। चलिए, अच्छा हुआ, आपको अपनी भूल का आभास तो हुआ। कुबेर, धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जो हमेशा झुका रहता है। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। राजन, आप यह भात ले जाइए और गणेश को खिला दीजिए, इससे उसकी भूख शांत हो जाएगी। धन्यवाद माता। प्रभु, मैं एक कटोरी भात लाया हूँ, इसे भी ग्रहण करें। ऐसा बात से मेरा क्या होगा? पर ठीक है ना। बड़ा ही स्वादिष्ट भात था। मेरा पेट भर गया। धन्य हो प्रभु, शायद मैं अतिथि सत्कार अच्छे से नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, मुझे किसी और दिन खाने पर बुला लेना। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। हर हर महादेव। यह प्रस्तुति देखकर तो मुझे एक बात समझ में आई गई कि अत्यंत घमंड बहुत दुखदायी होता है, इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। हृदयराज, क्या आपको पता है हमारी स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या है? Here every child gets an opportunity to come on stage and overcomes their stage fear. बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए हमारी स्कूल के सबसे छोटे बच्चे यानी कि नर्सरी के बच्चे एक अमेजिंग सा डांस हमारे सामने करने वाले हैं, और यह पहली बार है कि इतने छोटे बच्चों ने इतने ही समय में इतना अच्छा सा डांस प्रिपेयर भी कर लिया। तो चलिए हम सभी मिलकर के इन बच्चों को तालियों से और मोटिवेट करते हैं।
प्यारी, सबसे प्यारी, तेरे बस में है ये दुनिया सारी। सबसे प्यारी, सबसे प्यारी, तेरे बस में है ये दुनिया सारी। अपनी संशय कितनी पक्की, कितनी सच्ची, कितनी अच्छी, अपनी संशय कितनी पक्की, कितनी सच्ची, कितनी अच्छी, इसको सदा बताना। ओ मैं संग कनीशा, तू रहना साथ हमेशा। ओ मैं संग कनीशा, तू रहना साथ हमेशा। What a brilliant performance it was by these little ones of nursery. Thank you, tiny dancers. अच्छा, आप तो ये बात जानते हो कि हमारी संस्कृति में श्लोक को बहुत अधिक महत्व दिया है, इसलिए हमारे इस कार्यक्रम को और शुभ और मंगल में बनाने के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कक्षा केजी के छोटे छोटे बच्चे द्वारा श्लोक। क्या केजी के बच्चे भी श्लोक बोलेंगे? यू आर किडिंग, राइट? नो, आई एम नॉट। आओ आप खुद ही देख लो। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारी अदिति सिल्वर बेल्स स्कूल में इस वर्ष गीता बाल संस्कार की कक्षा का शुरुआत किया गया। यहाँ बच्चों को भजन, कीर्तन, श्लोक और उनके हिंदी अनुवाद के साथ बहुत कुछ धार्मिक बातों के बारे में बताया जाता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी भारतीय और धार्मिक संस्कृति के बारे में जान रहे हैं और बड़े उत्साह से इन श्लोकों को आनंद के साथ करते हैं। तो आइए हम सभी श्री गणेश जी की स्तुति, हिंदी अनुवाद और इन श्लोकों, भजन, कीर्तन को बड़े आनंद के साथ इनका सहयोग करें और हमारी गीता जी की दिव्य शिक्षा को समृद्ध बनाएं। श्री गणेश जी की स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। इस श्लोक का अर्थ है, शुकार है, तेरी सूंड वाले, विशाल काया वाले, करोड़ों सूर्य के समान तेज प्रकाश वाले, हे देव, आप मेरे सही कार्य को विघ्नोरहित करें। जय श्री कृष्ण। गणेश स्तुति। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो गज के मुख वाले हैं और भूत गंधाया सेवित है और पान और जामुन के फलों को बड़े चाव से भोग लगाते हैं,
देवस्तुति श्लोक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गणेशाय नमः। इस श्लोक का अर्थ है आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे भाई हैं, आप ही हमारे मित्र हैं, आप ही हमारी विद्या हैं, आप ही हमारे धन हैं। हे देव, आप ही हमारे सब कुछ हैं। जय श्री कृष्ण। सबकी मंगल कामना करने वाला श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम गणेशाय नमः। इस श्लोक का अर्थ है सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए, सब शुभ देखे, कोई भी दुख का भागी ना हो। जय श्री कृष्ण। प्रातः स्मरण श्लोक। कराग्रे करमध्ये सरस्वती, हाथों गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्। ओम गणेशाय नमः। इस श्लोक का अर्थ है हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी निवास करते हैं, हाथों के मध्य भाग में सरस्वती जी निवास करते हैं, हाथों के मूल भाग में विष्णु जी निवास करते हैं। इसलिए सुबह उठते हाथों को दर्शन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब हम कीर्तन करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहें। कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, उसकी चिंता न करें। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहें। कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, उसकी चिंता न करें, उसकी चिंता न करें। सबको नारायण नारायण। It was a wonderful presentation by these kids. कुछ तो बात है इन बच्चों में, जो ये इतने छोटे छोटे बच्चे इतना कठिन श्लोक इतने अच्छे से सही उच्चारण सहित बोल पा रहे हैं। Truly, my mind is mesmerized after listening to these shloks. This wonderful presentation of shloks give us the living experience of glory of the Lord Ganesh. अच्छा यह बताओ, अब जो सर्दियों की छुट्टियां आने वाली है उस समय आप कहाँ जा रहे हो? मेरा तो मन करता है पूरी दुनिया ही घूमने का, पर क्या बताऊं, आजकल इतना टाइम ही किसके पास है? You are talking about time? It takes only 5 minutes to travel around the world. क्या आप लोग
रहे हैं? ये तो इम्पॉसिबल है ना। गणेश जी और अदिति सिल्वर बेल स्कूल के बच्चों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आओ देखते हैं कि गणेश जी कैसे गणेश जी अपनी बुद्धिमानी से पूरी दुनिया का चक्कर सिर्फ 5 मिनट में ही लगा देते हैं। ओम गणेशाय नमः। मैं हूँ मूषक राज और मैं हूँ भगवान गणेश का वाहन। और आज मैं आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ एक बड़ी ही दिलचस्प सी कहानी। तो क्या सुनेंगे आप? अरे भाई जोर से बताइए, क्या सुनेंगे आप? जी हाँ, तो सुनिए। भगवान गणेश जी और कार्तिकेय दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में प्यार भरी तकरार होती रहती थी। तो चलिए उसी के ऊपर हम सुनते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सी कहानी। माँ ने तो बड़े स्वादिष्ट लड्डू बनाए थे। मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। फिर कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लिया जाए। चलो गणेश झरने पे नहाने चलते हैं। अरे नहीं भैया, आप जाइए ना। वो क्या है, मेरे भोजन की मात्रा थोड़ी सी अधिक हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर ही आराम करता हूँ। गणेश, तुम बहुत आलसी हो गए हो। रहने दो भैया, मैं तो आपसे ज्यादा चुस्त भी हूँ और फुर्तीला भी और अभी भी हूँ। तुम तो मेरे साथ दौड़ भी नहीं पाओगे। नारायण नारायण, आप दोनों की इस दुविधा का हल है मेरे पास। आप चलिए मेरे साथ, हम कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और पिता भोलेनाथ के पास चलते हैं। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। क्या बात है पुत्र, आप दोनों किस दुविधा में हैं? अरे पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, आप दोनों एक साथ? नारायण नारायण, प्रभु गौरी शंकर को शत शत प्रणाम। आइए मुनिवर, कहिए कैसे आना हुआ? प्रभु, एक छोटी सी समस्या है। कहिए नारद मुनि। गौरी शंकर, आप दोनों ही ये निर्णय करें कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में से सर्वशक्तिमान कौन है। ओह अच्छा, तो ये बात है। पर हमारे लिए तो दोनों पुत्र एक समान हैं। चलिए इस बात का निर्णय एक स्पर्धा से किया जाए। कैसी स्पर्धा पिताश्री? आप दोनों में से जो विश्व की 3 परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, वो ही विजयी घोषित किया जाएगा। मुझे स्वीकार है पिताश्री, मुझे भी स्वीकार है। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। चलो मयूर, शीघ्र ही चले। मेरा वाहन तो मूषक है, मैं कैसे बैठकर परिक्रमा लगाऊंगा? पुत्र गणेश, मुझे लगता है तुम्हें शीघ्र ही जाना चाहिए, वरना तुम हार जाओगे। चलो मूषक राज, चलो चले। है पूरे विश्व के 3 चक्कर? अरे इसमें तो मैं पूरा ही मूर्छित हो जाऊंगा। बात तो तुम्हारी सही है,
लेकिन क्या करें कि हम जीत जाएं? क्या करें? हाँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी गया और अभी आया। 1 2 3 और ये लो, मेरे विश्व के तीनों चक्कर पूर्ण हुए। नारायण, परंतु गणेश जी, आप तो यहाँ से गए नहीं। हाँ, ये कैसे संभव है? मुनिवर, आप तो जानते ही हैं कि मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया है। अरे वाह गणेश जी, आप तो बड़े ही बुद्धिमान हैं। अरे ये क्या गणेश, तुम अब तक नहीं गए? सच में तुम बहुत आलसी हो। गणेश जी ने तो आपसे पहले ही विश्व के 3 चक्कर पूर्ण कर लिए हैं। नारायण, गणेश ने जरूर कोई चालाकी करी होगी। चालाकी नहीं कार्तिकेय, बुद्धिमानी से काम किया गणेश ने। अच्छा, अगर ये सत्य है तो बताओ मुझे, तुमने क्या क्या देखा? 7 महाद्वीप, 4 महासागर और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और एक लंबी सी नील नदी देखी मैंने। अरे बस, किंतु ये कैसे हुआ? छोटी सी युक्ति से, किंतु सही मायने में तो आप विजयी हुए हैं भैया। आज से गणेश की बुद्धिमानी को देखकर सर्वप्रथम इन्हें ही पूजा जाएगा। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश जी की जय, कार्तिकेय जी की जय। तो बताओ कैसा लगा 5 मिनट में ही पूरी दुनिया का चक्कर लगाना? हाँ, सचमुच गणेश जी की बुद्धिमत्ता के आगे तो कोई नहीं टिक सकता। We all have heard about Lord Ganesh, और हम ये भी जानते हैं कि उनकी पूजा सर्वप्रथम होती है। But do we know how he came into existence? वैसे I have heard once, नानी सा ने बताई थी उनकी उत्पत्ति की कहानी, बहुत अनोखी है। तो आओ देखते हैं कि गणेश जी की उत्पत्ति के पीछे क्या कहानी है और क्यों उनका मुख गज के जैसा है।
बचेगा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा My mind is mesmerized after this beautiful presentation. So before ending the function, just like to bring your attention on some things. The voiceovers which you heard here was done by students of grade 2 and 3. Yes, it was done by them, and we have made a small BTS of the same, and the enactment part and the Parvati ji of Kartikeya act which you saw, the jewelry which she was wearing was made up of tissue paper. So every little detail was done here, and nothing and absolutely nothing has been outsourced. And the enactment was done by the small kids, of course, in the guidance of the elder students who have already been on stage earlier. So like this, we are giving them the platform to learn event management. The office bearers which you are seeing here, they are taking care of the kids, moving them back and fro. So like this, in a very small function, we are providing them the platform to have an experience of something which they can take forward with them. So we have made a small BTS for the same. I would like you to all see that and just praise my little anchors and of course everybody who was there behind it. Thank you so much. पूरा महल तो आपके लिए ही भोजन बना रहा है, फिर भी कब पड़ रहा है?
जब हमें भोजन का निमंत्रण देने के बाद हमें अपने धन चंडी लाओ और बोल रहा है चंडी लाओ। We have now come to the most awaited part of our program. It's time to hear from the person who has inspired us all with their presence. Ladies and gentlemen, join us welcoming our esteemed chief guests to share their thoughts and inspire us with their words. Ma'am, we kindly request you come forward and grace us with your valuable thoughts. Good evening and Kamagani to everyone. I'm in uniform because I didn't get the time for a change. I've run directly from a crime place to here. So, very thank you for inviting me here, team Aditi Silverwell. It was a pleasure being a part of this fabulous program and to see the young chaps doing so well and helping and showing the culture to the people. I'm very excited to say that under the guidance of an enthusiastic and a dynamic young lady, none other than Miss Aditi, who makes it sure that she instills a religious value and principles among her students. And believe me everyone who's sitting here that she's sticking to the core cultural and religious values and making the character of the students coming to the school very profound and strong. You have already learnt a lot about Pratham Pujaniya and Vigna Haran, Lord Ganesha, from this act. I just want to share an anecdote where the Lord Ganesha had to bear the wrath of Lord Shiva for obeying her mother's command, which I've already seen enacted on the stage. So, the children, what we learn from these stories is you just want to, that she wants to make you explain that we should always obey what our parents are saying to us, what our teachers are saying to us, what our families and the elders in the society are telling to us. You should always obey what they are saying, and please make it a habit to share your thoughts and whatever has happened with you, with your teachers and your parents. Don't hide anything from them because they are your guardians and they care for you a lot और उनको जितनी आपकी चिंता है उतनी किसी और को नहीं है. Hope you all will understand what I'm talking to you, because nowadays very many crimes are getting very many crimes are being involved in the society, and hope all of you pay heed to what I say and stick to these words. And thank you for inviting me here and making me a part of this such a colorful and a fabulous function. Thank you all, and thank you kids. It was wonderful seeing this program, and especially when I got to learn that children have spoken what all these playbacks were done by the children themselves. And best thing what I find in the school is they are teaching you the shlokas also, which has not been done or seen in other schools. So good initiative Aditi, and keep doing well. Thank you all. Thank you very much.
we have come to the end of our program. We hope that you enjoyed as much as we did. And may all you happy Ganesh Chaturthi and may Lord Ganesh bless you all with prosperity and joy. Thank you. तो सभी हमारे साथ